Hello friends, welcome to the YouTube channel Mathematics Ganit Sangraha, where we learn to transform complex mathematical topics to simple form. मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं and let's begin our lecture. Today our topic is what? Matrices and the subtopic is Cayley-Hamilton theorem. Arthur Cayley and William Rowan Hamilton together form this theorem that is known as the Cayley-Hamilton theorem. So today we'll see the statement with example. So first of all, we'll see the statement of this Cayley-Hamilton theorem. So what is it? That every square matrix satisfies its own characteristic equation. मतलब हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. So I have already told you what is the characteristic equation. So I just revise it here. That is, characteristic equation will be given by, it is determinant of A minus lambda I equals to, it is what? 0. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अगर सपोज मेरे पास मैट्रिक्स 2/2 है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक शॉर्टकट वे है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A equals to it is 0. By using this formula for the 2/2 square matrix we can get the characteristic equation. 3/3 के लिए भी मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला आपको बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं, या अदरवाइज नॉर्मल डेफिनेशन से आप निकालिए. नाउ व्हाट डज दिस कैली-हैमिल्टन थ्योरम सेज दैट कि स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को. अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? इट इज व्हाट? ए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लैम्बडा को रिप्लेस कर देने का पड़ेगा ए से. दैट इज अवर स्टेटमेंट, दैट इज कैली-हैमिल्टन थ्योरम. सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0. It is, sorry, big 0 actually this is, because it stand for the null matrix. Okay, and determinant of A should be multiplied with I, that is identity matrix. और identity matrix का order जो रहेगा that will be same as that of the order of A. अगर A का order 2/2 है तो मैट्रिक्स I का भी ऑर्डर हमारा 2/2 होगा. सो दिस इज द कैली-हैमिल्टन थ्योरम. आपको क्या करना है, लैम्बडा को रिप्लेस कर देना है बस A से, और जो स्केलर क्वांटिटी डिटर्मिनेंट ऑफ A आती है उसको I से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, विच इज इक्वल टू द नल मैट्रिक्स. सो दिस इज द कैली-हैमिल्टन थ्योरम. नाउ आफ्टर दैट विल सी दैट हु इज कैली एंड हु इज इट इज हैमिल्टन. So here Arthur Cayley is regarded as a Britain leading pure mathematician of the 19th century, and in 1848 he went to the Dublin to attend the lecture on Quaternion by the, it is Hamilton, and there they meet, and Hamilton was the, it is Irish physicist, and they both together invented this theorem that is known as the Cayley-Hamilton theorem. And what is the application of this theorem? In Cayley-Hamilton theorem we can, by using the Cayley-Hamilton theorem we can find the inverse of a square matrix, and we can reduce any higher order matrix polynomial to lower degree matrix polynomial whose degree can be less than the characteristic equation degree. मतलब हम हायर डिग्री पोलिनोमियल को रिड्यूस करते हैं लोअर डिग्री पोलिनोमियल, वो मैट्रिक्स पोलिनोमियल रहेगा हमारा. ओके, बाय यूजिंग दिस कैली-हैमिल्टन थ्योरम. तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो लेट अस सी दैट एग्जांपल. So we are having the example as here, find the characteristic equation of the matrix A equals to, it is a 3/3 matrix, it is given here, and hence find the matrix represented by this 4th degree polynomial and this 8th degree polynomial. Okay, that is a to the power 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I. अगर नॉर्मल मेथड से हम इसको निकालते देखो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ए टू द पावर 4 निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. ओके, और वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके ये जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल हमको दिख रहा है उसको हम रिड्यूस करते हैं लोअर डिग्री में, और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं तो हमको आसानी से मतलब वो चीज़ें मिल जाती है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे पहला जॉब हमारा रहेगा, इट इज फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A. So it is a 3/3 matrix we are having. Then by definition we can write down the characteristic equation as determinant of A minus lambda equals to 0. और अगर 3/3 डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स हमारे पास है तो हम इक्वेशन ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड में, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0. ओके, एंड हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ S1 निकालना है, S2 निकालना है और डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है. अब S1 का मतलब क्या होता है, S1 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम करना है, मतलब 2 + 1 + 2 दैट इज 5.
ओके, ये हो गया हमारा S1। और S2 मतलब क्या होता है, सम ऑफ, फिर से माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब डायगोनल एलिमेंट के माइनस निकालने हैं। माइनस निकालना मतलब क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, जैसे अगर मेरे पास 3 डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे हमको मुझे दिख रहे हैं, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे हम, ये जो 2 है ये कॉलम छोड़ देंगे हम और ये रो छोड़ देंगे। अब बचा क्या, 1 0 1 2, इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ पे लिखा है। फिर प्लस, फिर ये 1 के लिए क्या करेंगे हम, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे। अब बचा क्या, 2 1 1 2, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। देन प्लस इस 2 में ये डायगोनल एलिमेंट के लिए फिर ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, और जो भी बचा उसको हम हमारे डिटरमिनेंट में लिख देंगे, दैट इज 2 1 0 1। और नाउ 2/2 डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना वेरी इजी है। देखो 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, देन प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, then plus 2 into 1 minus 1 into 0, which is written here, and it comes out to be 7. Okay, then determinant of a we calculate, and determinant can be calculated by using the calculator, or you can calculate manually. Okay, but I'll suggest you, if you are having a calc, so use calc because it will give the more correct answer, because sometimes we make a mistake. और already मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हूँ जिसमें मैंने बताया कि how to find out the it is determinant, inverse, and as well as the multiplication of matrices in calculator. So please watch that video. Now after that it is very simple, that is to expand determinant by using the first row. हम यहाँ पे फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे, ये 2 यहाँ पे लिया तो इसको छोड़ देंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 0 इंटू 1, देन यहाँ पे -1 लेंगे हम बीच वाला एलिमेंट, ये कॉलम रो छोड़ दिया, देन जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वैसे फिर ये 1 से हम 1 एज इट इज़ लिखेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, फिर इन दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एंड देन वी गॉट दिस आंसर एज 3। ओके, सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ व्हाट, S1 S2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कहाँ पे, इस मैट्रिक्स के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा व्हाट, लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर plus 7 lambda minus 3 equals to 0. This is the characteristic equation. And what does this Cayley-Hamilton theorem says? It says that every square matrix satisfies its own characteristic equation. इसका मतलब होता है I can replace this lambda by a. ओके, सो जितना जहाँ भी लैम्बडा हमने उसको a से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इट इज वॉट, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर माइनस 3। अब 3 हमारा स्केलर है और ये हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहे हैं, बिकॉज a इज अ मैट्रिक्स, तो हमको i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आई का ऑर्डर रहेगा, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वही, जैसे यहाँ पे 3/3 हमारा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास है, तो आई का भी ऑर्डर क्या रहेगा, इट इज व्हाट, 3/3। सो दिस इज द कैली-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये चीज़ है विच इज इक्वेटेड टू, आई सेड इज व्हाट, बिग जीरो। ओके, सो इट इज अ बिग जीरो इज स्टैंड फॉर व्हाट, नल मैट्रिक्स। ओके, सो आई हैव टू यूज दिस equation which we have obtained by using the Cayley-Hamilton theorem to reduce this to polynomial of 4th degree and 8th degree. So let us proceed further. So हमारा पहला जॉब है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, उसके बाद Cayley-Hamilton theorem अप्लाई कर देना है। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे। सो पहला वाला जो था उसमें है a⁴ माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं अभी, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो से हमने जो कैली-हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई किया हुआ है, उसको हम एज इट इज यहाँ लिखेंगे a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, और ये क्वांटिटी क्या है, विच इज इक्वेटेड टू द नल मैट्रिक्स 0, मतलब ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास है a⁴ यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे इट इज़ वॉट, a क्यूब, तो मुझे चाहिए a⁴, इसलिए मैंने यहाँ पे a से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो ये a इंटू a क्यूब हो जाता है a⁴। अब मैं इक्वेशन को बैलेंस करूंगा सिर्फ। ओके, अब मैं इस a को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 5a स्क्वायर के साथ, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू द a, दैट विल बी द a क्यूब, सो माइनस 5a क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे है, तो बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस a को मल्टीप्लाई करूंगा 7a से, दिस विल बी व्हाट देन, 7a स्क्वायर, तो 7a स्क्वायर, बट हमारे पास क्या है यहाँ पे 8a स्क्वायर, बट हमें मिल रहा है 7a स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे a स्क्वायर ऐड करूँगा, तो ये 7a स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा, इट इज़ व्हाट, 8a स्क्वायर। देन फर्दर a मल्टीप्लाइड टू इट इज़ व्हाट, 3, सो इट विल बी माइनस 3a, i इंटू a विल बी इट इज़ व्हाट, a, दैट वी नो। देन माइनस 3a, और हमें चाहिए व्हाट, माइनस 2a, मेरे पास है माइनस 3a, तो मैं करूँगा प्लस a, माइनस 3a प्लस a विल बी माइनस 2a।
इज इट ओके। उसके बाद आई इज लेफ्ट, तो आई हम एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए ये हमारा है नल मैट्रिक्स जीरो, तो यहाँ पे हमने डाल दिया नल मैट्रिक्स जीरो, ए इंटू द नल मैट्रिक्स दैट विल बी अगेन अ जीरो, तो बचेगा क्या सिर्फ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। ओके, तो देखिए हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका डिग्री 3 था, और यहाँ पे जो हमको मिला मैट्रिक्स इसका डिग्री कितना हो गया 2, तो एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई निकाल देंगे, ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देना है रो वर्सेस कॉलम लेके, ठीक है। मैन्युअली भी कर सकते हैं या फिर आप कैलसी के भी यूज़ कर सकते हैं। आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, इन दोनों का ये चीज़ मिला, और बाद में ये दो मैट्रिक्स हमने लिखे, इट इज व्हाट ए और आई फॉर द 3/3 विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये तीनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर दैट इज एडिंग में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, 5 + 2 + 1 दैट इज 8, देन 4 + 1 + 0 दैट इज 5, देन 4 + 1 + 0 दैट इज 5, ठीक है। इस तरह से हमको ऐड करना है और ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सो ये हमारा हो गया पहले एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन। अब इसके बाद हम सेकंड एक्सप्रेशन देखते हैं जो e⁸ का है। अब देखिए मेरे पास जो थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, जो मुझे फिर से लिखना है यहाँ पे a³ - 5a² + 7a - 3i, जो हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम से निकाला है, और इसका वैल्यू होता है इट इज व्हाट नल मैट्रिक्स 0। ओके, अब यहाँ पे देखो a³ है, मुझे चाहिए e⁸ तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, e⁵ से, बिकॉज e⁵ और e⁵ मतलब e⁸ बेसिस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 5 + 3 क्या हो गया, इट इज व्हाट 8। अब हम बैलेंसिंग शुरू करते हैं, सो e⁵ इंटू e⁵ दैट इज e⁸, पहला टर्म ओके, देन e⁵ इंटू दिस -5a² दैट विल बी -5 e⁻7 विच इज हियर, इट्स ओके, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। e⁵ मल्टीप्लाइड टू द 7a दैट विल बी 7 e⁻6 विच इज ऑलरेडी हियर, फिर से बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। देन -3i मल्टीप्लाइड टू द e⁵ इट विल बी -3 e⁵ विच इज रिटन हियर अगेन, मतलब ऑलरेडी ये भी क्वांटिटी यहाँ पे है, मतलब यहाँ तक तो हमको बैलेंस करना ही नहीं पड़ा। अब इक्वेशन जो है वो आया e⁴ से, तो अब यहाँ पे e⁴ है, मैं इक्वेशन को हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन था वो मैंने एज इट इज लिख दिया है फिर से, जो 0 होता है नल मैट्रिक्स 0, तो इसको मुझे e⁴ चाहिए, तो मैं a³ को मल्टीप्लाई करूँगा a से, ओके, और उसके बाद हम फिर बैलेंसिंग करना शुरू कर देंगे। सो e⁴ यहाँ पे है, देन a मल्टीप्लाई टू द -5a² मतलब 5a³ -5a³ ये भी यहाँ पे है, a मल्टीप्लाई टू द 7a दैट विल बी 7a², बट मुझे चाहिए क्या 8a², तो मैं 7a² में a² ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा +8a², तो बैलेंसिंग करना सीखना है आपको बस। देन a इंटू -3i दैट विल बी -3a, बट मुझे चाहिए -2a, तो -3a में मैं +a ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा -2a, और ये i एज इट इज लिखा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो हमने फोर्थ डिग्री का ऑलरेडी मतलब सॉल्व किया हुआ यहाँ पे पिछले इसमें, तो वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुई है। ओके, तो देखो ये क्वांटिटी हमारी हो गई नल मैट्रिक्स 0, और ये e⁵ मल्टीप्लाइड a से मतलब ये भी नल मैट्रिक्स 0 आएगा, सेम ये भी नल मैट्रिक्स 0 से मल्टीप्लाइड है a, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा नल मैट्रिक्स, और बचा फिर से वही चीज़ a² + a + i, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था a² मतलब a इंटू a + a + i, इसको आप जैसे पिछले इसमें भी कैलकुलेट किए थे हमने वैसे फिर इसमें भी कर देना है आपको। ओके, सो दैट आंसर विल बी सेम 855,030,558। तो यहाँ पे देखिए हमको जो हायर पावर था वो निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, मतलब e⁸, e⁻7, e⁻6 बाद में वो कैलकुलेशन नहीं करे। हमने क्या किए, कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके उस पर्टिकुलर हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उसको रिड्यूस कर दिया लोअर डिग्री में, और उसके बाद हमने मैट्रिक्स कैलकुलेट किया यहाँ पे। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो हियर द एक्सरसाइज इज गिवन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन एंड जस्ट डू द प्रैक्टिस। मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो दिया हूँ वो 2/2 के ऊपर है, और फोर्थ क्वेश्चन आपको मैंने दिया इट इज़ फॉर 3/3, दैट यू कैन डू इट ओके बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please do subscribe the channel for more such videos and like the video. If you have any query, just post in the comment box, I will try to solve it. Thank you very much.